Welcome students. Today we are going to start session number 4 of chapter number 1 sets of class 11th mathematics. This is today's first topic. This is very important Venn diagram. So हम लोग अगर sets को हम लोग अगर एक rectangular box के अंदर में कुछ circle से represent करते हैं, so that figure is called Venn diagram. So in order to express the relationship among sets in perspective, we represent them pictorially by means of diagrams called Venn diagram. In these diagrams, the universal set is represented by rectangular region and its subsets by circle. Inside the rectangle, we represent disjoint sets by disjoint circles, दो अलग-अलग circles, and intersecting circles by intersecting sets by intersecting circles. Okay, so we'll take one example. If suppose there are two sets A and B, and such that every element of A is also an element of B, then we say that A is a subset of B. Okay, so how we have to represent this in Venn diagram? See, the rectangular box is U, and in that box two sets contain, that is A and B. और B के अंदर में क्या है? A. Why? Because A is a subset of B. Okay, so now we'll move to the next topic, that very important topic. यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस. ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स है ये टॉपिक. सो फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स. सो लेट A and B two sets, then A union B is the set of all those elements which either belongs to A or belongs to B or belongs to both A and B. Okay, so common elements जो है वो हम लोग उसके intersecting part में draw करते हैं when we will draw the Venn diagram. Okay, so this is the representation of A union B. So जो दोनों में जो common element रहता है वो दोनों का intersecting parts में जो common part है उस वहाँ पे हम लोग लिखते हैं, right? So symbolically we used to write that A union B is equals to X, such that X belongs to A or X belongs to B. Okay, so we'll take one example. मान लो A में दिया हुआ है A E I O U और B है A B C. So A union B हो जाएगा A B C E I O U. Okay, यहाँ पे जो है A को एक ही बार लिखना है, right? So we have to keep in your mind that two very important points, that if X belongs to A union B, अगर A union B में X है तो वो A में भी हो सकता है या B में भी हो सकता है, right? अगर X A union B में नहीं है तो वो दोनों में नहीं होगा. Okay, so this is very important property. Now we'll see some properties of operation of union. So first property is commutative law, that is A union B is equals to B union A, and it also follows the associative law also. ठीक है, and this is very important. A union phi is an empty set. दोनों का जब यूनियन लेंगे तो A ही मिलेगा. This is law of identity element, that is phi is the identity of union, and A union A will always equals to A, that is idempotent law. And if universal set union A fit A, then we'll take universal set. This is law of universal set. So these are the some very important properties of the operation on union. Now we will move towards our next topic, that is intersection of two sets. Intersection means common part only. So the element belongs to both the sets. Okay, so let A and B be two sets, then A intersection B is the set of all those elements which belongs to both A and B. अगर X A intersection B में है तो वो दोनों में होगा. Okay, right? So इसको ऐसे दिखाएंगे Venn diagram में. जो blue color का जो shaded part है, that is the common part. Okay, that is the A intersection B in Venn diagram. So we'll take one example. Suppose A is 2 4 6 8 and B is 1 2 3 4. So दोनों में जो common element है वो 2 4 है, तो वो 2 4 जो है वो A intersection B में आएगा. Now these 2 points are very important. If X belongs to A intersection B, then X belongs to A, also X belongs to B. अगर X belongs to A intersection B में नहीं है तो या तो वो X में नहीं होगा या तो B में नहीं होगा, right? या X में हो सकता है या B में भी हो सकता है. Is that clear?
लेकिन उसको नॉट इक्वल में, नॉट बिलोंग्स टू में ज़्यादा करेक्ट होगा वो, इफ वी राइट x नॉट बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू a और x does not belongs to b. Now we will move towards the properties of operation of intersection. Here also commutative law is following that intersection a intersection b is equals to b intersection a, and associative law also follows, and phi intersection a, phi is empty set, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो नल सेट मिलेगा phi. Similarly u intersection a will be a only. So first one is law of phi and the second one is law of u, and the next is idempotent law. यहाँ पर भी जैसे a union a में a मिला था, so यहाँ पर भी a intersection a में a ही मिलेगा, that is idempotent law. So here distributive law, this intersection is distributed over union. Okay, so union also distributed over intersection, तो दोनों तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. So these are the properties of operations of intersection. Now we will move towards the difference of two sets. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग या तो a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं या b माइनस a के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, सो देन let a and b be the two sets. We defined a minus b as the set of those elements of set a which are not in set b. अगर हम लोग a minus b लिखते हैं तो जो एलिमेंट a में है वो b में नहीं होना चाहिए, राइट right? अगर हम लोग b माइनस a लिखते हैं तो जो एलिमेंट b में है वो a में नहीं होने चाहिए. सो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना है a का, इफ यू आर राइटिंग a minus b such that that does not belongs to b. Okay, we'll see one example. उसको हम लोग वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड का जो है a minus b है और जो डार्क जो शेडेड है वो a इंटरसेक्शन b है जो कॉमन पार्ट है, एंड द अनशेडेड पार्ट इज जो ब्लैंक है वो b minus a है. we'll see one example. फॉर a मान लो नेचुरल नंबर है लेस देन इक्वल्स टू 10, तो क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and b is an odd positive integer less than equals to 10. So 1 3 5 7 9. So when we write a minus b, तो a के कौन कौन से एलिमेंट b को बिलोंग नहीं करेंगे, वो क्या क्या है 2 4 6 8 10, और x is even positive integer less than or equals to 10. बट उल्टा अगर कर रहे हैं b माइनस है, क्योंकि b के सारे एलिमेंट्स a में है, सो b का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में नहीं है, सो वी विल गेट b minus a is equals to null set. So two very important properties that if x belongs to a minus b, x belongs to a and x does not belongs to b. If x does not belongs to a minus b, तो वो a में तो नहीं होगा, पक्का है, नहीं, if x does not belongs to a minus b, so x does not belongs to a और x belongs to b. ये क्लियर है? अभी जैसे a माइनस बी में एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट जो a माइनस बी में नहीं है, तो ऊपर वाले जो एग्जांपल में है, विल टेक 3. ठीक है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, और 3 जो है does not belongs to a minus b, right? So x does not belongs to a, या तो x does not belongs to a होगा या x belongs to b होगा. तो फर्स्ट वाला नहीं है तो सेकंड वाला होगा, x belongs to b. Okay, so we'll see one more a very important property that from the Venn diagram a minus b और a intersection b और b minus a जो है उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये म्यूचुअली disjoint sets भी बोलते हैं इसको, right? Now we are going to start one more topic, disjoint sets. अगर दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं disjoint sets. So दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, null set, that is 5. Okay, so Venn diagram से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक एग्जांपल देख लेते हैं. Suppose A is a set of all even numbers, even natural numbers, or B is set of all A is set of all odd natural number और B is set of even natural number. तो उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, so कोई भी कॉमन नहीं है, that means they are disjoint sets. So now phi is a subset of A for all sets A. क्योंकि सबसेट में हम लोग देखे थे कि एम्प्टी सेट जो है वो सभी का सबसेट होता है,
और 5 इंटरसेक्शन A कितना होता है, 5 होता है. दैट इज लॉ ऑफ 5 हम लोग देखे थे. ओके. सो नाउ we are moving towards first question of the next exercise, that is exercise 1.4. Find the union of each of the following pairs of sets. So union जब लिख रहे हैं तो रिपीट नहीं करना है. So first वाला जो आंसर है उसमें 1 दो बार है और 3 भी दो बार है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे. जब यूनियन लिखेंगे तो 1 2 3 and 5. So this is the answer. Okay, 1 2 3 5. Now the second one, A. सेकेंड वन में A रिपीट हुआ है, दोनों में है, और बाकी सारे एलिमेंट्स अलग अलग है. ठीक है, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स को लाइन से लिखेंगे इस तरह से, A B C E I O U. ओके. द नेक्स्ट वन, A सेट A में ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 3. B में X इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. राइट, तो उसमें कॉमन क्या होगा, natural number and multiple of 3. So natural number multiple of 3 में 3 6 9 12 so on पूरा. और less than 6 में 1 2 3 4 5 हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 4 5 पहले लिखेंगे और फिर सेट A का जो सारे एलिमेंट्स है वैसे लिख सकते हैं. ठीक है, और 1 2 3 4 5 लेने के बाद जो A के जो बचे हुए जो एलिमेंट्स है 6 9 12 वैसे लिख सकते हो, वैसे लिखेंगे हम लोग. सो दिस इज द थर्ड आंसर. नाउ फोर्थ वन, X इज अ नेचुरल नंबर सच दैट 1 लेस देन X लेस देन इक्वल्स टू 6. सो 2 3 4 5 6 आ जाएगा. B में X इज अ नेचुरल नंबर 6 लेस देन X लेस देन 10, तो यहाँ पर आएगा 7 8 9. सो दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे, यूनियन लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. नेक्स्ट वन, A 1 2 3 और B is 5, तो जब यूनियन लेंगे तो सिर्फ 1 2 3 आएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट A is equals to AB, B is equals to ABC. Is A is a subset of B? A के सारे एलिमेंट्स B में ऑलरेडी है, तो यस, आंसर इज यस. सो व्हाट इज A यूनियन B? अगर A यूनियन B लेंगे तो A B को एक ही बार लिखना पड़ेगा and we will get A B C only. Okay, that is B. Okay, so this is answer number 2. Now let us move towards question number 3. If A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? अभी ऊपर जो देखे थे वही था. A union B क्या आया था ऊपर, B आया था. So that is the answer. Okay, that means each elements of set A already it is in set B. तो set B के ही सारे elements A union B हो जाएगा. Fourth question, if A is equals to 1 2 3 4, B is equals to 3 4 5 6, C is equals to 5 6 7 8, D is equals to 7 8 9 10, find A union B. first A union C. तो A union B पहले देख लेते हैं. A और B का जो यूनियन है इसमें 3 4 सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे, तो पूरा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा. सेकेंड वन, A यूनियन C. A यूनियन C में A और C में 1 2 3 4 A में है और 5 6 7 8, सो 1 2 8 हो जाएगा पूरा. और द थर्ड बिट B यूनियन C. B में 3 4 5 6 है और C में 5 6 7 8 है, सो 5 6 को एक ही बार लिखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा. ओके. एंड B यूनियन D. B 3 4 5 6 है और D जो है वो 7 8 9 10 है, तो वो पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा. एंड A यूनियन B यूनियन C, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले दो का यूनियन निकाल लेंगे. जैसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का यूनियन निकाल लेंगे, 1 2 3 4 और 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8. तो इसमें 5 6 दो बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे, तो पूरा जो यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वन में भी वैसा ही है, तो पहले हम लोग पहले दो का यूनियन निकालेंगे, दैट इज 1 2 3 4 3 4 5 6. सो 3 4 ऑलरेडी यहाँ पर रिपीट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा पहले वाले का. एंड द सेकेंड वन इज 7 8 9 10, तो पूरा का पूरा दोनों अलग अलग नंबर्स है और 1 to 10 तक है, तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 up to 10. So this is 6th bit. Now one more bit is left, that is 7th bit.
तो 7th बिट में भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड का ले लेंगे 3 4 5 5 6 7 8 और उसके बाद सेकंड वाले में दोनों में 7 8 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे तो ये वाला आंसर आ गया 3 से लेकर 10 तक. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव. तो यही 5 क्वेश्चंस थे वहां पे. हम लोग को दोनों में कॉमन पार्ट फाइंड आउट करना है. इंटरसेक्शन मींस कॉमन. सो पहले दोनों में जो कॉमन है वो 1 3 है और सेकंड वाले में ए सिर्फ एक ही है और थर्ड वाले में x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12 सो ऑन और लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 तो केवल एक ही एलिमेंट है दैट इज 3. फोर्थ वाले में था 2 3 4 5 6 7 8 9 so there is no common so 5 and the fifth one 1 2 3 5 ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 5 हो जाएगा. ओके एम्प्टी सेट. क्वेश्चन नंबर 6. Total 10 bits are there. So we'll do one by one. First A intersection B. A और B में common क्या है find out करो. 7, 9 और 11. Please see carefully. A और B में 7, 9, 11 common है. तो first वाला हो गया. B और C में 11 और 13 common है. Similarly A intersection C intersection D में क्या करेंगे पहले दो का निकालेंगे. ठीक है. फर्स्ट वाला ए और सी का इंटरसेक्शन देखो. ए और सी का इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है दैट इज 11 और 11 और 15 17 में कोई भी नहीं है तो ये भी नल सेट हो जाएगा. नाउ द फोर्थ बिट ए इंटरसेक्शन सी. ए और सी में एक है 11 कॉमन है और बी इंटरसेक्शन डी में एक भी नहीं है सो 5 हो गया. ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी. तो पहले बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेंगे. सो बी यूनियन सी में 11 और 13 दो बार रिपीट हुआ उसको सिंगल टाइम लिखेंगे. अब ये दोनों में कॉमन क्या क्या है 7 9 और 11 तीन एलिमेंट्स कॉमन है सो दैट इज द फाइनल आंसर. नाउ 6 बिट्स हो गया. 7th बिट ए इंटरसेक्शन डी. यहाँ पर भी कोई भी कॉमन नहीं है तो नल सेट हो गया. नाउ द 8th वन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी. सो बी यूनियन डी पहले निकालेंगे. बी यूनियन डी में एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो सारे 6 एलिमेंट्स लिखेंगे. लिख लिए. अब दोनों में क्या कॉमन है देखो 7 9 11 these three elements are common so that is the answer. Now 9th bit A intersection B intersection B union C. so A intersection B पहले निकाल लिया that is 7 9 11 और B यूनियन C भी निकाल लिया 7 9 11 13 15. सो ये दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11. सो दिस इज द आंसर. सो लास्ट बिट बच गया है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C. सो A यूनियन D हो गया 3 5 7 9 11 15 17 और B यूनियन C वैसे निकाल लेंगे 7 9 11 13 15. तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो चार एलिमेंट सेम है 7 9 11 15. So this is the answer. Okay. So 6th question हो गया हम लोग. Now let us move towards the 7th question. If x is equals to x such that x is a natural number, b is equals to x such that x is an even natural number, c is equals to x such that x is an odd natural number, and d is equals to x such that x is a prime number, then find all the 6 bits. So पहले हम लोग a b c d लिख लेते हैं. लिख लिए राइट. नाउ a इंटरसेक्शन b. a और b में क्या कॉमन है. a में सारे नेचुरल नंबर है और b में केवल इवन नेचुरल नंबर है तो कॉमन क्या होगा इवन नेचुरल नंबर राइट. सो इवन नेचुरल नंबर दैट इज b ओनली. a इंटरसेक्शन c. a में सारे नेचुरल नंबर है और b में सारे ऑड नेचुरल नंबर है तो दोनों में कॉमन क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर c. नेक्स्ट a इंटरसेक्शन d. a में 1 पूरे नेचुरल नंबर है और d में केवल प्राइम नंबर है तो कॉमन क्या होगा प्राइम नंबर. ओके. नाउ द फोर्थ बिट b इवन है और c ऑड है सो देयर इज नो कॉमन सो 5 सेट. नाउ ओनली 2 बिट्स लेफ्ट. द फिफ्थ वन
बी इंटरसेक्शन डी, बी सारे इवन नेचुरल नंबर है और डी प्राइम नंबर है, तो एक ही प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है, दैट इज 2. ओके, नाउ द लास्ट बिट सी इंटरसेक्शन डी. सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर. डी क्या है? प्राइम नंबर. सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, तो कॉमन क्या होगा दोनों में? दोनों में कॉमन क्या होगा? सारे ऑड प्राइम नंबर. So we can write x such that x is an odd prime number. Okay. Now we will move towards question number 8. Which of the following pairs of sets are disjoint? Disjoint means there should be no common elements. So 1, 2, 3, 4, and the next one is 4, 5, 6. 4 common ho gaya. That means not disjoint set. The second one में e common है, right? So वो भी disjoint set नहीं है. And the third one, even integer, odd integer दोनों अलग अलग है, तो ये वाला disjoint set है because there is no common element. Now the ninth question भी काफी बड़ा है. So a b c d दिया हुआ है, we have to find a minus b. a minus b में हम लोग क्या करेंगे? a के वो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो b में नहीं है. ओके, क्लियर है? All elements of a which do not belongs to b. सो ए में देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बी में नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड. 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है. तो हम लोग को कितना मिलेगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21. राइट. नेक्स्ट वन, ए माइनस सी. दोनों में देखो ए के सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो 3 नहीं है, 6 है, 9 नहीं है और 12 है, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो ए माइनस डी. ए के सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है, राइट? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है. सो दीज आर द आंसर. ओके, सो केवल एक ही एलिमेंट इसका जो है वो डी में है, दैट इज 15, उसको निकाल दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज बी माइनस ए. बी के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, सो 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है. सो 4 एलिमेंट्स हो गए, 4, 8, 16, 20. नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ बिट, नहीं फोर्थ हो गया, फिफ्थ बिट, सी माइनस ए. सी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, सो सी के कौन कौन से एलिमेंट जो ए में नहीं है? देखें, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है और 16 नहीं है. सो दीज आर द आंसर्स. नेक्स्ट वन, डी माइनस है. डी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं है, सो 5 नहीं है, 10 नहीं है और 20 नहीं है. सो 3 एलिमेंट्स ए में नहीं है. सेवेंथ बिट, बी माइनस सी. बी के सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, 4 है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, केवल 20 नहीं है. तो यहाँ पर 20 है बस, ओनली वन आंसर. नेक्स्ट, बी माइनस डी. 4, बी के सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है, सो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है. बस एक ही एलिमेंट डी में है, तो चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे. नाउ द नाइन्थ बिट, सी माइनस बी. सी के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, सो 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 है. सो ये सारे आंसर्स है. नेक्स्ट, डी माइनस बी. डी के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है. तो यही 3 आंसर होंगे क्योंकि 20 इसमें है. नेक्स्ट वन, सी माइनस डी. सी के सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है, सो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है. सो 10 को छोड़कर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. नाउ द लास्ट वन, डी माइनस सी. डी के सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है, सो विच आर दे? 5 नहीं है, 10 is there, 15 not there, 20 is also not there. So 5, 15, 20. So 10th question होगा, 9th question होगा. We'll move towards the 10th question. x और y दिया हुआ है, x minus y फाइंड करना है. So x के सारे एलिमेंट जो y में नहीं है, a,
नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी है। सो दो ही एलिमेंट है, ए और सी। y माइनस एक्स, y के जो एलिमेंट जो x में नहीं है, सो यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स नहीं है, कौन कौन से, f और g। नाउ x इंटरसेक्शन y, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है, दो एलिमेंट्स है, b और d। सो दीज आर द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? ऑल r माइनस q का मतलब क्या है, ऐसे कितने सारे रियल नंबर्स नहीं है जो रियल नंबर्स है जो रैशनल नंबर नहीं है, क्या होगा, इररेशनल नंबर। बिकॉज r कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रैशनल एंड इररेशनल। तो कौन कौन से जो सेट है जो रैशनल नहीं होंगे, दैट इज इररेशनल ओनली। सो आंसर इज set of real numbers minus set of rational number will be equals to set of irrational numbers. So now we are moving towards the last question of the exercise. State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. The first one, disjoint sets. No. Why? Because 3 is common. 3 is common. And the second one are disjoint set. इसमें A common दिख गया मुझे तो, और कोई कॉमन है नहीं, सो ए इज द कॉमन एलिमेंट, फॉल्स। द थर्ड वन आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दिस इज ट्रू। एंड द फोर्थ वन अगेन 2 6 10 3 7 11 दोनों में अलग अलग है, सो ये भी डिसजॉइंट सेट्स है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो नाउ we have completed exercise 1.4. Then in the next session we will start some new topic, and we'll start exercise 1.4. So that's all for today's session. Thank you very much.